Question number 7. Find the sum of n terms of an AP whose kth term is 5k plus 1. Kth term is 5k plus 1. Solution 7. Then this kth term is 5k plus 1. That means AK is equal to 5k plus 1. Then A1 is 5 into 1 plus 1, 5 plus 1 is equal to 6. A2 is 5 into 2 plus 1 is equal to 5 into 2 plus 1, 11. Then A3 is 5 into 3 plus 1 is 16. तो 5 का कॉमन डिफरेंस होगा हमारे पास. A is equal to 6 and D is equal to 5. तो A की वैल्यू हमारे पास आई 6 और D की वैल्यू आई 5. अब इन दोनों के बाद A और D की वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हमने निकालना है सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म दिस Sn n by 2 2a plus n minus 1 into D. पुट द वैल्यू ऑफ n हमारे पास n तो n टर्म में निकालना है हमने. 2 into this 2 into a 6 plus n minus 1 into 5. Then n by 2 this 2a or 12 plus 5n minus 5. This n by 2 this 5n plus 7. Then n by 2 5n plus 7 is the sum of n terms. Sum of n terms. Question number 8. If the sum of n term is given, Sn is equal to Pn plus Qn square. Pn plus Qn square. Where P and Q are constant and find the common difference. और इनका common difference निकालो. This sum of n terms is given. Sum of n terms, that means S1 sum of one term, that means first term also. Sum of first terms and first term is the same. Then P plus Q is the first term. Then S2 is A1 plus A2, sum of two terms. Then put the value, this 2, then 2P plus 4Q, 2P plus 4Q. लेकिन S2 जो होता है वो होता है A1 plus A2. Then S2 is equal to this 2P plus 4Q. S1 हमारा क्या है? S1 is P plus Q. अगर हमें सेकेंड टर्म निकालनी है A2 is S2 minus S1. Then S2 is 2P plus 4Q minus P minus Q. Then P plus 3Q is the second term. ये हो गया आपके पास सेकंड टर्म. जब आपके पास सेकंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गया, आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो. D is equal to A2 minus A1 and A2 is P plus 3Q minus P minus Q. This cancel out to this. Then D is equal to 2Q. The common difference is 2Q. Next question. Question number 9. The sum of n terms of two arithmetic progression are in the ratio. Sum of n terms, दो AP हैं. This AP1, AP2. This first term is A. Common difference is D and first term is A and common difference is D.
then sum of n terms of first AP, sum of n terms of first AP is n by 2 2a plus n minus 1 into d, and Sn sum of n term this first AP and this second AP, this n by 2 is 2a plus n minus 1 into d is the sum of n terms, और उनकी जो रेशियो दे रखी है दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो ऑफ 5n plus 4 और 4n plus 6. This ratio is given. Then S sum of first n terms of an AP, sum of n terms of first AP upon sum of second term of an AP is equal to 5n plus 4 upon this 9n plus 6. 9n plus 6 is given. Then this n by 2 से n by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों की सॉरी यहाँ नहीं करेंगे हम, this n by 2 2a plus n minus 1 into d upon this n by 2 is 2a plus n minus 1 into d is equal to 5n plus 4 and 9n plus 6. n by 2 से n by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. लेकिन हमारे पास जो रेशियो पूछी गई है वो रेशियो क्या पूछी गई है, रेशियो पूछी है उसने उसकी फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th term. Then S18th term of first AP upon 18th term of second AP. दोनों AP की 18th term लिखेंगे. This A plus this 18d, this 17d upon A plus 17d, ये हमारे पास 18th टर्म होगी. अब ये हमारे पास 18th टर्म जो जिसकी रेशियो निकालनी है, दिस A18 अपॉन A18, दिस रेशियो, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. दैट मींस फर्स्ट एपी वाली टर्म को भी और सेकंड एपी वाली टर्म को भी. दिस 2a प्लस दिस 34d अपॉन 2a प्लस 34d. अब इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर कर लें दिस, तो यहां से n-1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. देन n-1 is equal to 34, then n is equal to 34 plus 1, n is equal to 35. n की वैल्यू अगर हम 35 पुट कर देंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 18th टर्म की. कौन सी टर्म की आ जाएगी? 18th टर्म की. देन दिस n की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 into this 35 plus 4 अपॉन, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया दिस टर्म और इसके इक्वल ये है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं. देन 9 into 35 plus 6, देन 25 2 5 3 15 17 4 45 4 27 31 plus 6, then 179 upon 321 is the ratio of 18th term. Ratio of their 18th term. 18th term की रेशियो आ जाएगी आपकी 179 upon 321 is the correct answer. Similar question as 9th का similar question है 12, जो आप खुद करेंगे. This similar question 9 and 12. तो 12 क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपको. Then question number 10.
10th question. The sum of p terms of an AP is equal to sum of q terms. Then find the sum of p plus q term. Sum of p terms of an AP, sum of q terms of an AP. Then find sum of p plus q terms. आपको sum of p plus q term निकालनी है क्या होगा? When sum of p terms of an AP is equal to sum of q terms of an AP. Let A is the first term, and D is the common difference. D is the common difference of an AP. एक चीज का ध्यान रखें, हर एक क्वेश्चन में आप ये जरूर लिखें, जिसमें भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन में एपी में उसके सम का फॉर्मूला लिखते हैं, तो आपको डायरेक्ट ऐसी चीजें दे रखी हो तो ये जरूर लिख दे कि फर्स्ट टर्म आपने क्या लिया और कॉमन डिफरेंस आपने क्या लिया. देन एस पी, सम ऑफ पी टर्म्स. सम ऑफ पी टर्म्स इज p by 2 is 2a plus p minus 1 into d, the sum of p terms. And then sum of q terms, then q by 2 is 2a plus q minus 1 into d. आपके पास दोनों टर्म है, दोनों को इक्वेट करेंगे. then p by 2 2a plus p minus 1 into d is equal to q by 2 2a plus q minus 1 into d. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2pq 2a सॉरी 2aq 2ap p से मल्टीप्लाई करें 2ap प्लस pd p minus 1 is equal to 2aq प्लस qd p minus q minus 1. एंड देन इसको इधर ले आते हैं, दिस 2a कॉमन, दिस p minus q, pd को उधर लेके जाते हैं. देन qd q minus 1 minus pd p minus 1. then 2a p minus q. यहां से देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, q स्क्वायर d माइनस क्यू डी माइनस पी स्क्वायर डी प्लस पी डी. देन 2a p माइनस q इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी कॉमन निकाल लेंगे, दिस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहां से प्लस डी कॉमन निकाल के और p माइनस क्यू. अब देखेंगे कि तीनों टर्म में p माइनस क्यू कॉमन आ सकते हैं. कैसे? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. 2a p माइनस क्यू, दिस d, दिस q माइनस p, इसको p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में निकाले थे, p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू, एक माइनस कॉमन आ जाएगी. अब ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस d इंटू p माइनस क्यू. अब आपके पास p माइनस क्यू हर एक टर्म से आप कैंसिल आउट कर सकते हो. एंड देन दिस 2a इज इक्वल टू, ये माइनस डी है और ये d है, और d की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 1 ओनली. तो हम यहाँ से d की वैल्यू, d माइनस डी को कॉमन निकाल दें, दिस माइनस डी p प्लस क्यू प्लस 1, ये हमारे पास 2a का रिलेशन आ गया. 2a इज इक्वल टू माइनस डी p प्लस क्यू प्लस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 होगा क्योंकि माइनस डी कॉमन निकाला तो माइनस 1 होगा. देन आपके पास सम ऑफ क्यू प्लस p टर्म्स निकालना है. सम ऑफ p प्लस क्यू,
sum of p plus q by 2, then 2a plus p plus q minus 1 into d। अब आप देखेंगे 2q की वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू माइनस d into this, then p plus q by 2 into minus d, p plus q minus 1 into d plus p plus q minus 1 into d. This cancel out to this number is 0 multiplied to this 0, then sum of p plus q terms is 0, तो sum of p plus q terms 0 आ जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इज दैट क्लियर? Eleventh question. The sum of p, q and r terms. Sum of p terms is equal to a. Sum of q terms is equal to b, and sum of r terms is equal to c. Sum of r terms is equal to c. And prove क्या करना है? a upon p into p q minus r plus b by q and r minus p plus c by r and q minus p is equal to 0. p minus q is equal to 0. ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले let a be the first term and d be the common difference of any p. Then sum of p terms is n by 2, sum of p terms p by 2, this 2a, first term is a, 2a plus p minus 1 into d is equal to a, and then sum of q terms q by 2, 2a plus q minus 1 into d is equal to b, and sum of r terms then r by 2, 2a r minus 1 into d is equal to c। ये हमारे पास टर्म्स दे रखे हैं। अब हम यहां से देखें कि इस 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और p को इधर लेके जाऊंगा, ऐसे ही 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, q को नीचे लेके जाऊंगा, r को इधर नीचे लेके जाऊंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। दैट इंप्लाइज दिस a plus p minus 1 into d upon 2 is equal to a by p, and then a plus q minus 1 into d by 2 is equal to b by q, and this implies this r by 2, this a plus r minus 1 into d by 2 c upon r, this equation 1, this equation 2, this equation 3। अब आप देखेंगे कि जो हमें प्रूव करना है पहले आप उसको देखें। a अपॉन p हमारे पास है, b अपॉन q हमारे पास है, c अपॉन r हमारे पास है, इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये मल्टीप्लाई होनी चाहिए टर्म, ये मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ये मल्टीप्लाई। तो हम क्या करें कि q माइनस r को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में। दैट मीन्स मल्टीप्लाई q माइनस r ऑन बोथ साइड्स, देन
लिखें Q मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by Q minus R on both sides. Similarly, second by R minus P on both sides, and third by P minus Q on both sides. अब देखेंगे इससे आगे तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड की टर्म है वो बन जाएगी दिस ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। लेफ्ट हैंड साइड की हमारी टर्म पूरी हो जाएंगी। जब हम इस टर्म को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि सारी टर्म कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगी, सारी टर्म्स कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएंगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, राइट हैंड साइड क्या आएगी जीरो। ये हमने इधर ऐड किया, ये इस साइड में लिखा और इसको हम दूसरी साइड में लिख रहे हैं। देन दिस, इसके बाद अभी मैं इसको क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इंटू क्यू माइनस आर प्लस ऐसे ही ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस पी से प्लस और ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बाई 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे पी माइनस क्यू से। तो मैं एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले ए को मल्टीप्लाई करके मैं कैंसिल आउट करके दिखा रहा हूं। सेम टर्म आपकी ऐसे ही कैंसिल आउट होगी। जैसे हमने इस टर्म को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टर्म आई ए क्यू माइनस ए आर। ऐसे ही जब इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस पी से तो हमारे पास टर्म आएगी ए आर माइनस ए पी। और नेक्स्ट में जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास टर्म आएगी ए पी माइनस ए क्यू। अब आप देखें, सिर्फ मैंने ए और ए की टर्म को मल्टीप्लाई किया है। ए क्यू से ए क्यू की टर्म कैंसिल आउट होगी, ए पी से ए पी की टर्म कैंसिल आउट होगी, ए आर से ए आर की टर्म कैंसिल आउट होगी। सिमिलरली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू की टर्म आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, तो ये सारी की सारी कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगी जीरो। तो जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास आ जाएगा। फर्दर आप आगे क्वेश्चन को खुद करेंगे मल्टीप्लाई करके। अभी मैंने सिर्फ इसकी फर्स्ट टर्म को ही मल्टीप्लाई करके दिखाया था। नेक्स्ट जो आपकी सेकंड टर्म बचती है उसको आप खुद मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था